welcome to Ek Vartalap at Arunim Ankuran. Today we are having a panel discussion on the pros and cons of being a teacher in 2023. It's a privilege to welcome brilliant teachers Deepti ma'am, Preeti ma'am and Sona ma'am here. Thank you so much for joining us. A word about Arunim Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person makes a difference, and that's what inspires us to keep going. Our panelists today are Mrs. Ankita from DPS Bangalore, Mrs. Deepti Chandan Singh Bisht from NMC Nagpur, Dr. Preeti Chaya from Daimsar Nagpur, and Mrs. Sona Khare from Sona Tutorials. Warm welcome to all of you. If we teach today, as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow. We all know that there are so many challenges 21st century classrooms bring, like preparing students for a dynamic, global, technology-driven society, equitably supporting diverse learners, successfully addressing standards, effectively using resources, balancing quality with increased accountability. So we are here today with these brilliant teachers who are changing lives. And the topic, as we all know, is the pros and cons of teaching in 2023. Especially post-COVID, a lot has changed. So I think we can start with Ankita because I think हम alphabetical order में चलेंगे. Yes, Ankita, please go ahead. Sure. Sure. Good evening, everyone. I'm Ankita, and thank you once again so much, ma'am, for giving me this opportunity to be a part of this program. And yes, so I work basically as a counselor. So my role is a combination of teacher and school counselor. So to begin with the pros of working with children, I think it's very important because as in children, being the formative years, when we know, first is like, I think understanding them what type of mentality or what type of thoughts children has today, so that it's, as a teacher, I think it's important because that helps us to generate the right thoughts, guide them in the right direction, so that they can be better citizens. And also, I think from my experiences also, because when I was in that age, be it as a child or adolescent, what things I liked and what things I didn't like, that also helps me to understand, which also it's, I think, a advantage of being a teacher, where we can help the children to guide in the right way. And yes, I think those are something very important things, ma'am. So advantage of being a teacher, of course, because we feel, I mean, that's what something we can guide the children in the right way. And talking about disadvantages, I think as teacher, it's very important to understand what background the children comes from, because I feel sometimes there's a gap where as children, we as teachers, we are not able to understand what challenges that children come from. And if we see, as you mentioned, post pandemic, okay, it has been something, it has the children of today, that has definitely taken toll on their mental health, be it their tolerance level or be it how they express their emotions. Sometimes the parents, I think these days one thing which has happened is, the parenting has changed, which I feel where it becomes difficult as teacher, I feel, to convince the parents, that sometimes their parenting methods has to be changed, or what challenges the children are going through. Sometimes the parents don't accept that. So I think this way, there are pros and cons of being a teacher, of course. Thank you, Ankita. हम लोग सब ये चैलेंज जो था पैंडेमिक का, उसमें टीचर्स ने कितनी मेहनत की हम लोग ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी चीजें परमानेंटली चेंज हो गई हैं. तो मुझे लगता है कि दीप्ति मैम बहुत मेहनत करती हैं. आई नो हाउ शी वर्क्स. इतने क्रिएटिव हैं और बहुत अच्छी साइंस टीचर हैं. उनकी हम लोग ने पहले भी एक संवाद किया था एक बार. तो दीप्ति मैम, आपको क्या लगता है कि जो अभी 2023 में एज अ टीचर आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स नजर आते हैं एज अ टीचर? संवाद आपको प्रणाम है. सभी मेरे पैनलिस्ट को भी नमस्ते हैं. सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक विज्ञान शिक्षिका हूँ. तकरीबन 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ.
और प्रोज एंड कॉन्स हम यदि देखते हैं तो इसको शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चाणक्य ने कहा था कि प्रलय और निर्माण एक शिक्षक की गोद में पलते हैं। वो हर वो काम कर सकता है जो एक शिक्षा जगत में जरूरी है। तो जो 3 फायदे हैं, देखिए हम 3 फायदों की बात कर रहे हैं, लेकिन फायदे तो अनेकों हैं, अनगिनत है। तो शिक्षा के जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में यदि हम देखते हैं, तो आपको बता दूं कि 1968 में जो पहली एनईपी थी, उसके बाद 1986 में हुई, फिर 2020 में हुई। इन तीनों का जो अंतर है 36 वर्षों का, हमने जो बच्चों के बीच में जो गैप देखा है, तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी जो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनको जो रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है, कौशल्यपूर्ण जो शिक्षा है, उस पे हम ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। दूसरा शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा है कि शिक्षा केवल शिक्षित होने तक सीमित नहीं है मैम। शिक्षा एक बेहतरीन सिटीजन, एक बेहतरीन नागरिक बनने की ओर सभी टीचर्स उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम केवल एक स्टूडेंट निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम एक बेहतर नागरिक निर्माण कर रहे हैं। और तीसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो शिक्षा है, ये कभी अकेले नहीं आती है, स्वास्थ्य संस्कार अपने साथ लेके आती है। तो जो कल्चर हम भूल चुके थे, जिसको हमने पुराने जमाने से, अब हम बोलते हैं कि नहीं बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन जो वैल्यू एजुकेशन एडेड हो रहा है अभी शिक्षा के साथ, वो बहुत फायदेमंद है। और यदि मैं नुकसान की बात कहूँ, तो मुझे तो केवल एक ही, वो नुकसान नहीं है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है आजकल के शिक्षा का, कि बेसिकली 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद, हमने जितना ऑनलाइन किया बच्चों को, ऑनलाइन जो हमने किया, तो बच्चे सोशल मीडिया से बहुत अवेयर हो गए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो। तो उसको पॉजिटिव वे में लेने की बजाय कुछ जो बच्चों का समूह है, वो उसको अलग तरीके से ले रहा है। तो सबसे बड़ा समाज को और एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलों में टीचर्स के लिए यही है उनका बैड इफेक्ट, कि वो उनसे अभी दूर करने की जो कोशिश है, वो नहीं हो पा रही है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा, उनका समय जो जा रहा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक नुकसान है, सबसे बड़ा मैम। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इस पे भी हम लोग पूरा पा लेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं, एनईपी बेसिकली हमारे लिए, टीचर्स के लिए जो नई चीजें लेके आया है, अब इसमें जैसे 2 डिग्री मिलेगी, जो हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि इंटरनेशनल एजुकेशन को सच में लाना है। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होकर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा कहीं का भी हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो, जिला परिषद का हो, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, बच्चे सबके लिए बच्चे हैं, उनकी शिक्षा सबके लिए एक जैसी हो। मुझे तो ऐसा लगता है पूरे देश में शिक्षा एक जैसी हो, और उनको कौशल्यपूर्ण शिक्षा दी जाए। कौशल्यपूर्ण शिक्षा से क्या होगा कि वो अपने पैरों के ऊपर खुद खड़े हो जाएंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी बातें एज ऑलवेज, आपने बहुत हम लोग का सबका ज्ञानवर्धन भी किया। तो अभी हम लोग प्रीति से पूछते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, बताइए। Okay, so a warm good afternoon to all the beautiful and intelligent panelists over there. And first of all, I would like to congratulate Pragya ma'am for the beautiful initiative. And I keep on seeing your beautiful discussions. And I'm really amazed by the way in which you conduct these sessions. So talking about today's education system, the best thing which I associate myself is that if we it is often said that if we are not changing, then we are not growing. So this job of being a teacher, I think, gives me an opportunity to keep growing and keep learning throughout my life. So I think that is the biggest pros of being a teacher. And it is definitely challenging, but the joy of seeing the students grow and become a very, very good, what you can say, very good futuristic generation gives me an immense pleasure and joy. So definitely I think that this is a very big association, or this is very big blessing which this particular what I can say, that this particular career opportunity or this career has got of being a teacher. And definitely post COVID things have changed a lot.
that is managing students along with their mobile phones, their very near and dear mobile phones, is definitely a very big challenge for us. And what I observe is everybody wants to earn easy money, and they are far away from the concept of working hard. They want things easy and on their fingertips. So making them aware of the basic moral values and pushing them to work hard as well as smart, no doubt at all, but making them work hard, or understanding them the importance of hard work, is a biggest challenge which I face nowadays. थैंक यू सो मच। और ये प्रीति कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो इनका जो एज ग्रुप है, दैट्स व्हाई वो मोबाइल स्कूल्स में तो अलाउड नहीं है क्लास Yes. में, तो शी हैज टू फेस दैट चैलेंज आल्सो। थैंक यू प्रीति। सोना एक फ्रीलांसिंग टीचर है और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। शी हैज अ गुड बैच ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू हर ऑलवेज, वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो सोना प्लीज शेयर योर पर्सपेक्टिव। थैंक यू प्रज्ञा दी, मैं इन्हें प्रज्ञा दीदी बुलाती हूँ। और आज सुबह ही उठी तो एक दो थॉट ऐसे थे, कुछ कल परसों के इंसिडेंट से या शायद और पिछले कुछ इंसिडेंट से, कि मैं कुछ इसी बारे में सोच रही थी कि समझ क्या रखा है टीचर्स को। और आफ्टर फ्यू मिनट्स आई जस्ट, मैं प्रज्ञा दी का कॉल आया और मुझे बहुत खुशी हुई। दीप्ति मैम, प्रीति मैम और अंकिता मैम, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और प्रज्ञा दी आपके चरण स्पर्श। और गॉड ब्लेस यू। और जिस तरीके से प्रज्ञा दी ने मुझे बताया और आप लोगों को उन्होंने बताया कि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, मैं अपना सोना ट्यूटोरियल्स नाम से क्लासेस चलाती हूँ। इसके पीछे एक उद्देश्य है। अभी 2 दिन पहले भी मुझे कहीं स्कूल से उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करिए, पिछले साल भी हुआ, मैंने नहीं ज्वाइन किया। उसके पीछे मकसद ये है कि मैं बच्चों को अपने तरफ से जो चीजें सिखाना चाहती हूँ उसकी फ्रीडम है मुझे, क्योंकि मैं अपना खुद के क्लासेस चलाती हूँ। मैं उन्हें पढ़ाने के साथ उनकी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा काम करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं प्रज्ञा दी को भी देख के इस चीज की इंस्पिरेशन आई, और पहले से भी दिमाग में था, बट इनको देख के आया, सो से करना चाहती हूँ। जैसे दीप्ति मैम ने चाणक्य का बताया, उसी तरीके से विवेकानंद जी ने बोला, बाय टीचिंग वी आर डूइंग द वर्क ऑफ गॉड। सो हम इतने नोबल प्रोफेशन में हैं और बहुत ही मतलब इस चीज का हमेशा प्राउड रहता है। इसकी सबसे पहली खासियत मुझे लगती है कि जो बॉन्ड हम स्टूडेंट्स के साथ बनाते हैं वो इतना डीप हो जाता है कई बारी कि हम भूल जाते हैं उन बच्चों को, पर वो बच्चे हमें याद रखते हैं और अपनी हर सक्सेस को हमारे साथ शेयर करते हैं जब। सो ये फीलिंग मुझे नहीं लगता किसी और प्रोफेशन में होती है, क्योंकि मैंने अभी 10 दिन पहले बॉम्बे से कॉल आया, मैम आज मैं पूरी तरह से डॉक्टर बन गई हूँ और अब आप अपनी बुढ़ापे की कोई चिंता मत करिएगा। So, इस तरीके के जब हमको ये हमारी जो एक्चुअल कमाई है ये शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं है, और ये कभी साल दर साल कभी भी चेंज नहीं होगी। और जो दूसरा मुझे इस चीज में एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो हमें होता है, वो मुझे नहीं लगता कितना भी बड़ा कोई प्रोफेशन हो या कुछ हो, इतना बड़ा जॉब सेटिस्फेक्शन आई डोंट थिंक कहीं रहता है। कई बार ही होता है बच्चे हमसे इतनी डीप और इतनी सीक्रेट फैमिली की बात शेयर कर जाते हैं, और मेरा पेट तो इसीलिए इतना बड़ा हो गया है क्योंकि बहुत सीक्रेट है बहुत सारे बच्चों के। सो उतनी गहरी बातें वो शेयर कर जाते हैं, और कई बार उसका सॉल्यूशन हमारी तरफ देखते हैं कि हम उन्हें दे पाए। सो ये बहुत बड़ा एक मन को एक बहुत संतुष्टि है इस चीज की। और इसी के साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें देख के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे या वो जिस सर्कमस्टेंसेस में काम कर रहे हैं और जिस सर्कमस्टेंसेस में पढ़ रहे हैं, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, बस से पढ़ना चाहते हैं, उनका एक अलग से बैच बनाती हूँ, उनको लेती हूँ मैं। सो उनसे मुझे ये दिखता है कि घर में कितनी प्रॉब्लम है, डेली दे आर स्ट्रगलिंग फॉर रोटी एंड ऑल, बावजूद उसके उन्हें कम से कम पढ़े। उनसे बहुत और भी ऐसे बच्चे हैं अच्छे घरों के भी जिनसे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं।
सो लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी इसमें मुझे मिलती है। और थोड़े समय के बाद बच्चे सोचते हैं कि हम उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो हमें एक टीचर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह लेते हैं। कई बार हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिसमें एक प्राइवेट ट्यूटर या इस तरीके का मेरा प्रोफेशन है, जो उसमें सबसे पहला होता है मॉनेटरी चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ते हैं। सम पेरेंट्स इस तरीके से बिहेव करते हैं कि दे आर परचेजिंग समथिंग, सो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे बहुत पिंच करती है। बिकॉज इफ I am giving my time, if I am giving my experience, so I will charge for that. मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बॉम्बे में बहुत सारे मेड के बच्चों को पढ़ाया। वन ऑफ माई फ्रेंड, शी टोल्ड मी कि सोना भले 100 रुपए लेना, लेकिन लेना जरूर। जब बात मुझे समझ में आई, थोड़ा अंतर समझ में आया, जब मैं 100 रुपए ही ले रही हूँ लेकिन ले जरूर रही हूँ, उसमें जब अंतर समझ में आया, तो आज तक मैं भले 11 रुपए लेती हूँ लेकिन मैं फीस जरूर लेती हूँ। तो मॉनेटरी चैलेंज कहीं ना कहीं, चाहे जिस तरह से अंकिता मैम है, प्रीति मैम है, दीप्ति मैम है, जो अच्छे जॉब में है किसी इंस्टीट्यूशन या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है, वहां भी करने पड़ते हैं ये चैलेंजेस हमें फेस। और अभी भी कोविड के टाइम मुझे याद है, मेरी बच्ची डीपीएस में पढ़ती थी, वहां पे फीस हम पूरी नहीं देंगे का एक इन लोगों ने इस तरीके से एक कोशिश की थी कि इस तरीके का कोई काम किया जाए कि फीस हम कम दें। और मेरा क्योंकि थोड़ा सा राइटर हूं, तो डीपीएस में थोड़ा सा टीचर्स के साथ में कनेक्शन था, प्रिंसिपल के साथ कनेक्शन था। उन्हें लगा मैं आऊंगी तो उनको काफी सपोर्ट मिलेगा इस चीज का। लेकिन मैंने इस चीज के अगेंस्ट काम किया। मैंने कहा मैं कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अब एकदम नए तरीके से टीचर्स पढ़ाना सीख रहे हैं। बहुत से टीचर्स को आता भी नहीं था कि किस तरह से जूम मीट करना है। और इसके अलावा जिस दिन हम फीस कम करने के लिए अगर सक्सेसफुल हो भी गए और हमारे सामने ट्रस्टीज मान भी गए, तो सबसे पहले टीचर्स की पेमेंट कट करेंगे, वो कहीं और कुछ नहीं करेंगे। सो मैंने इस चीज का पूरा बायकॉट किया, और वो कहीं भी फिर देखने नहीं मिला कि वहां कहीं ऐसा किया गया। इसके बाद मुझे एक चीज जो थोड़ी सी लगती है, हालांकि दीप्ति मैम की बातों से मुझे ये चीज पता पड़ी कि हम शिक्षा पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है हल्का हल्का एक स्टीरियोटाइप है वो चलता जा रहा है। थोड़ा सा शिक्षा को प्रैक्टिकली हमें ऐसा बनाना है कि हमारे बच्चे उसको सीख कर उस तरीके की पढ़ाई करें। हमारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स, ये थोड़े से और इम्प्रूव हो सकते हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा एज अ टीचर कभी कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब मैं सिविक्स पढ़ाती हूँ हायर क्लासेस को, 8th 9th और 10th को, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि हम उसमें सारी चीजें बहुत पॉलिश्ड वे में पढ़ा रहे होते हैं। और जब बच्चा एक बार पलट के पूछता है तो यहाँ सड़क क्यों नहीं ढंग से बनी हुई है, अगर ये इनका काम है तो तब फिर हमारे पास आंसर नहीं होता है। सो थोड़ा सा हमको इसको प्रैक्टिकली समझाना इनको जरूरी है कि चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं वो थोड़ी सी डिफर हैं। आई नो इसके पीछे बहुत सारा बड़ा एक पूरा रैकेट जैसा है, जिस चीज को चीजों को बिगाड़ने की कोशिश होती है उस हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों को हर चीज से अवेयर करना है। और जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उनको इवेल्यूएट करने का जो तरीका है, उससे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आती है। उसको एक लेवल में ही रखना चाहिए। कहीं वो ग्रेडिंग में है, कहीं वो नंबर्स में है, तो उससे बच्चों के ऊपर असर पड़ता है और टीचर्स को प्रॉब्लम होती है। सो मेरे ख्याल से उस चीज पे थोड़ा सा वर्क होगा तो हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और इस चीज का हमेशा गर्व है कि बप्पा ने बोला कि टीचर बनो तो मैं बनी ऐसा मुझे लगता है। और आप सबका साथ मिला, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं हमेशा आज का दिन और ये समय याद रखूंगी। थैंक यू सो मच प्रज्ञा दी। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सबके पर्सपेक्टिव सुन के। थैंक यू सोना। मुझे एक चीज लगती है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा मतलब
टीचर्स को लेके, वैसे हम गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, ये हमारी संस्कृति के हिसाब से ये हमारी सोच है टीचर्स के बारे में। तो मुझे लगता है कि आजकल के जमाने में जैसे आप लोग हैं, तो आपको पेरेंट्स के रवैये से या मैनेजमेंट के रवैये से अपनी जो आत्मसम्मान बोल सकते हैं उसके प्रति कैसी फीलिंग होती है? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मैम, दीप्ति मैम से शुरू करें। मुझे बहुत अच्छा लगा सोना मैम की बातें, और मैंने पैनलिस्ट की बातें भी सुनी। मेरे विचार में जो पेरेंट्स की जो समस्या है ना मैम, ये दूसरे स्कूलों में बहुत होती है। हमारे स्कूल में तो बच्चा पहली में जब एडमिशन लेता है, उसके पेरेंट 10वीं तक नजर ही नहीं आते हैं। मतलब उनको पेरेंट्स मीटिंग में भी हमको बुलाने के लिए उनके मतलब 2-4 पेरेंट्स के घर में चले गए, उनसे बातचीत कर ली, क्योंकि वो जो क्लास है मतलब कैसा है, जो एवरेज स्टूडेंट्स आते हैं, एक्चुअली उनके पेरेंट्स को जो रोजगार के साधन जुटाने के लिए, कमाने के लिए, माता पिता दोनों रोजगार में चले जाते हैं, सुबह से बच्चा अकेले रहता है, फिर वो 9-10 बजे तैयार होके स्कूल आता है, तो हर एक को फोन करके बुलाना, घर जाना, पड़ोसियों से खबर इकट्ठा करते करते ही हमको मतलब 11 बज जाते हैं। तो बच्चों को भी अपने कभी-कभी कैसा होता है कि उन बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ता है। तो सबसे पहले मेरे सामने समस्या ये है गवर्नमेंट स्कूल में काम करने की, नागपुर महानगर पालिका में, कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि जगाना। जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी चीज का, आप लाख कोशिश कर लो, आप कितनी कोचिंग दे दो, आप कितनी अच्छी फैसिलिटी दे दो, घर में कंप्यूटर्स दे दो, लैपटॉप दे दो, टैब दे दो। हमारे महानगर पालिका के मेयर ने लॉकडाउन में टैब बांटे बच्चों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला उनको स्कूल में लाने के लिए शिक्षा के प्रति जो उत्सुकता है वो जगाना। मुझे सोना मैम की एक बात, मैं भी उससे बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने ये कहा कि बच्चों को हम दोस्तों की तरह, और सही बात है, हम कहते हैं बच्चे सुनते सुनाते नहीं है, क्योंकि दोस्तों की तरह हम उनको बुलाते नहीं है। कौन कहता है कान्हा पृथ्वी पे आते नहीं, क्योंकि सुदामा की तरह हम उनको बुलाते नहीं। तो हमें भी उनके फ्रेंड बनना है, और आपको रोज रोज स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज करवानी है। जैसे मैं खुद साइंस टीचर हूँ, पर्यावरण के टीचर हूँ, मैं पुस्तकें लिखती हूँ, मैंने 18 किताबें लिखी हैं, मैं एससीईआरटी के साथ काम करती हूँ, एनसीईआरटी के साथ काम करती हूँ। तो मेरे भी तरीका, जब तक हम शिक्षक अपना तरीका नहीं बदलेंगे तब तक बच्चे स्कूल में आएंगे नहीं। उनको नहीं चाहिए वो किताबें, उनको नहीं चाहिए वो लेंदी वैसा होमवर्क नोटबुक, ऐसा नहीं। उनको कुछ ना कुछ रोज क्रिएटिव चाहिए मैम। जैसे मैं लेबोरेटरी में ही बैठती हूँ, मुझे मेरा काम लैब में ही है। बार बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन पढ़ाने की बजाय मैं दिखाना ज्यादा पसंद करूंगी। 1 पिक्चर सेज द 1000 वर्ड। मशरूम की बात करते हैं, वो सिर्फ दिखा दो आप, बच्चों को पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो पेरेंट्स की समस्या, पेरेंट्स तो चाहते ही हैं कि मैडम इसको तो बड़ा, वो पकड़ के लेके आते हैं कि आप इसका एडमिशन करो। हम, और हमारे यहाँ एडमिशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, जो भी बच्चा जिस एज का जहां पे भी सूट करता है हम उसको लेते हैं, क्योंकि हमारे स्कूलें बने ही, हम जिला परिषद और महानगर पालिका वाले सारे शाला बाह्य है बच्चों को, क्योंकि एजुकेशन लास्ट लेवल तक मिलना चाहिए। प्राथमिक जो शिक्षा है गवर्नमेंट ने भी जरूरी की है कि ढूंढ ढूंढ के बच्चे लाते हैं, हम सर्वे कर कर के बच्चे लाते हैं। हमारे लिए तो वो स्कूल है, बच्चा आ गया तो हम उनको, तुम बस आ जाओ, बाकी तो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। उनको यूनिफॉर्म्स है, उनको बुक्स है, सब देते हैं, उनको मिड डे मील भी देते हैं, उनको हम हर चीज बुक से लेके कॉपी से लेके सब देते हैं। हमारा मूल उद्देश्य बच्चों को प्रेशराइज करना नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है बच्चा पहले स्कूल में आ जाए, पढ़ा तो हम बाद में लेंगे ही उसको, क्लासेस तो पास करवा ही देंगे 10th। और हमारी स्कूल भी लगातार 5 सालों से 100% रिजल्ट देती है। और आप सोचिए, जो बच्चा 6वीं 7वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ता है, वो 10th क्लास का एग्जाम इंग्लिश में देता है मैम, सेमी इंग्लिश में देता है। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे आप? मतलब टीचर की ड्यूटी हमको लगती है 6 घंटा। मैं खुद हाई स्कूल पढ़ाती हूँ 8, 9, 10। आप बताओ, जिस बच्चे को अपना नाम लिखना नहीं आता है स्कूल का, वो न्यूटन्स लॉ पढ़ता है, वो कैपलर्स लॉ पढ़ता है। तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो हम बैठे रहते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं। मतलब बच्चा 8वीं 9वीं में आया कि हमने अलग अलग तरीके से उसको, बोलते हैं ना कि उसको बहुत अट्रैक्टिव वातावरण देना। नहीं, आज ये कंपटीशन है, नहीं आज हम ये प्रयोग करने वाले हैं, आज हम ये बनाने वाले हैं, आप देखना कैसा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा होता है। तो बच्चा ना बहुत अपना खुद का मैग्नेट लेके आता है, आयरन लेके आता है, पत्तियां जमा करता है, प्रोजेक्ट लाता है, उसको इंटरेस्ट है। तो रुचि पैदा करने का काम हम लोग करते हैं। जो पेरेंट्स की जो चिंता है, पेरेंट्स ने बोल दिया मैडम आप टीचर नहीं हो, आप हमारे बच्चों की माँ हो,
आप जैसे डील करेंगे, जैसे करेंगे वो हमको चलेगा। और हमको भी ऐसा लगता है, मेरे लिए मेरा स्टूडेंट अभी तक कितने हजारों बच्चों को पढ़ा है, मेरे लिए हर बच्चा लास्ट बेंच, और मैं कभी पहले बेंच वाले बच्चों को नहीं देखती। मुझे मालूम है ये बच्चे अपने आप कर लेंगे, अपने आप पास हो जाएंगे। मेरा न्यूटन जैसे साइंटिस्ट ना वो पीछे ही मिलते हैं सारे, लास्ट बेंचर सबसे पहले आते हैं। आपने टेबल पे कुछ एक्टिविटी लगाई तो सबसे पहले लास्ट वाले बच्चे आके खड़े हो जाएंगे, बॉयज खड़े हो जाएंगे, गर्ल्स खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट आता है। मेरे लिए सारी क्लास में से जो लास्ट बेंचर है ना, उन पे ज्यादा नजरें होती है मैम। तो हम तो सबसे पहले रुचि पैदा करते हैं, पढ़ा तो हम लेंगे ही उनको। और मुझे लगता है हम लोग को प्रीति का पर्सपेक्टिव सुनने में भी थोड़ी उत्सुकता है, क्योंकि वो जिस एज ग्रुप के साथ डील करती हैं, दैट इज कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन। तो प्रीति, कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस हैं विच यू वुड लाइक टू शेयर? यस मैम, देर आर मेनी एक्सपीरियंसेस। जैसे मुझे लगता है कि यस डेफिनेटली हम कहते हैं कि कोई किताब हम अगर पढ़ने के लिए उठाते हैं तो अगर वो किताब हमको बोरिंग लग रही है तो वो ऑथर की गलती है। वैसे ही अगर स्टूडेंट्स को कोई क्लासेस अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो टीचर की गलती है। सो इट इज अ बढ़िया बात है, वेरी गुड। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि हम इस तरीके से पढ़ाने जाएं या पढ़ाएं कि स्टूडेंट्स अपने आप उसमें इंटरेस्ट उनको आए। तो वी फोकस ऑन, जैसे मैम ने बताया, दीप्ति मैम ने, कि स्किल बेस्ड एजुकेशन पे अभी ज्यादा फोकस है और कंटिन्यूस असेसमेंट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड, कंटिन्यूस उनको इवेल्युएट करना ज्यादा फ्रूटफुल है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हमने पाए हैं। और एक लगता है कि डेफिनेटली हम जिस एज ग्रुप के साथ हम रहते हैं कि उनके साथ फ्रेंडली होना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज हम उनको बताते हैं कि डेफिनेटली वी आर टॉकिंग टू यू इन अ फ्रेंडली वे बट वी आर नॉट योर फ्रेंड्स। ये देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू थिंग्स, बट वी हैव टू टेल देम, क्योंकि सोशल मीडिया और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, सो दे फॉरगेट दैट हु वी एक्चुअली आर टॉकिंग टू। तो हमको उनको बताना पड़ता है कि यस, हम आपके गाइड है, मेंटर है, फ्रेंडली वे में हम आपको पढ़ाते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस दैट वी डेफिनेटली आर देयर फॉर यू ऑलवेज। सो आप करिए हार्ड वर्क, आगे बढ़िए, बट थोड़ा सा जो एक अंतर है बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ टीचर, वो आप प्लीज बनाए रखिए। ऐसा आज की जनरेशन को बताना पड़ता है। थैंक यू प्रीति फॉर शेयरिंग दैट। और अंकिता का रोल एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। She knows what the teachers are going through as well as what students are going through. So Ankita, couple of observations from you. Sure, ma'am. I completely agree with what Preeti ma'am told. Like especially being as counselor, the students know ki they are scared of the teachers. Teachers may tell the secret to someone, or they only scold us. So it's a very good opportunity when you're a counselor. Students trust you and they come and tell you, they share their problems. And again, we have to draw the line, because of course I go in the classes also where, as Preeti ma'am rightly said, we are teaching you in a friendly manner, but again, we are not your friends. So when we talk about the students, ma'am, so after the pandemic, especially as I see the changes, like how even Deepti ma'am also mentioned, their addiction towards social media, or, their tolerance level has really reduced, use of lot of foul language, kuch bhi hoga, so they just become aggressive, and also one of the concerning thing is how previously in our times, or, till few years back, how children used to value everything. These days, I feel, the value for money or value for anything, it's not there. It has become very less. So that is something which again, mostly probably comes from family. So in school, that is something which we are constantly working on, how to value everything, how to value people, how to be grateful. I think that is something we have to keep telling, because I think these days kids so easily everything is available to them, so that gratefulness is somewhere reduced. So that is where as teachers or as counselors, we have to really, control over our patients and increase our tolerance level to explain them.
And yes, of course, for teachers also, like, I think during pandemic it was online, and post pandemic, it's like offline and online, our work which has become. After school we have meetings, we have to connect to parents. So for teachers also it has something, very stressful, of course. So where we also take workshops for the teachers, and where we also guide them, like, especially when it comes to higher grades, 6th onwards or 7th onwards, where these adolescents are there. We also train the teachers how they can connect with them, and while being assertive, connecting with them, but again drawing the line that we're teaching you in a friendly manner, but again we are not friends. Yes, ma'am. Thank you, Ankita. Or before we conclude, Sona, your perspective on teachers value education में क्या रोल प्ले कर सकते हैं? बहुत ज्यादा हमारे लिए तो स्कोप है, हमारे लिए पूरा आगे मैदान खाली है और उसमें हम चाहे जितनी तेजी से रेस लगा सकते हैं। सो बहुत ज्यादा हमारे पास स्कोप है। तो इसमें मेरे हिसाब से इसमें 2 चीजें मैटर करती हैं। एक, हम जो सिखाना चाहते हैं वही चीजें उसी वे में पेरेंट्स और बच्चे उन्हें लेना चाहते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, हम ये जो वैल्यू एजुकेशन वाली बात है, ये सबसे पहली बात ये है कि ये पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए। कई बार ये होता है, हम बहुत सी चीजें सिखाना चाहते हैं बच्चों को, और जब वो घर पे जाके ये फीडबैक देते हैं कि इस तरह से मैम ने बताया, हाँ अरे ये सब ठीक है, कोई हम तुमको ये बता रहे, ऐसा हो जाता है। सो ठीक है, हमारा काम है और हमें ये फिर भी करना है, बावजूद इसके हमें करना है। सो आज जो सिनेरियो है बच्चों का, अंकिता मैम ने भी बताया कि जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पैंडेमिक के बाद की, मोबाइल और ये स्क्रीन टाइम बढ़ने से, और इस तरीके की प्रॉब्लम जो आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है बच्चों को हमारे मोरल्स, वैल्यू, इन सब से पीछे की ओर धकेलने। मेरे पास एक छोटा सा किस्सा दी शेयर करूंगी। मेरे पास एक नर्सरी का बच्चा आया अभी कुछ दिन पहले, उनकी नानी उन्हें लेकर आई और बोली, सोना आप इनको थोड़ी देर बस यहाँ बिठा लिए, ये घर में किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो मैंने देखा वो तो मेरी हर बात सुन रहा है, सब कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने बातों बातों में उनसे जब पता पड़ा वो कोई काम बिना स्क्रीन के नहीं करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि इसके दिमाग पे स्क्रीन ने पूरा ऐसे करके अपना हाथ जकड़ के रखा है और वो बच्चा उस चीज से परेशान है। चलिए वो समझ गई, उन्होंने कर लिया। जब हम किसी को दूसरी चीजें बताते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम बताते हैं, या वैल्यू एजुकेशन या मोरल से रिलेटेड कोई बात बताते हैं, तो उसको पेरेंट्स को, बच्चों को ये बताना चाहिए, हाँ बेटा आपके टीचर हैं, उन्होंने सही बात बताई। मुझे थोड़ा सा ये है, आजकल जो पेरेंटिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे काम में कभी कभी थोड़ी बाधाएं पैदा कर देती है। Totally agreed, मैम। सोना, और एक बहुत अच्छी बात जो अभी निकल के आई वो फाउल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो हमने एक अभियान शुरू किया है, मीठी वाणी बोलिए। तो वो एक स्वच्छ भाषा अभियान है। जैसे हम लोग कहीं कहीं एक जोन बना सकते हैं कि ये स्वच्छ भाषा जोन है, यहाँ मीठी वाणी बोलिए, तो उसके पोस्टर्स लगा सकते हैं। अब मैं अपना इसी के बारे में एक्सपीरियंस, आपने जब 3 महीने पहले स्वच्छ भाषा बोलिए अब्यूज, हमने ना पूरा प्रोजेक्ट चलाया। और हम ना क्या करते हैं, बच्चों एक बच्चों पे नहीं, पूरा प्रोजेक्ट चलाते हैं, और वो तब से लेके आज तक, और हम उस पर नजर रखते हैं बाकायदा। आप विश्वास मानिए मैम, सब जगह जितने हमारे बच्चे, हमारे स्कूल में क्लासेस में, हाई स्कूल में हमारे पास 250-300 बच्चे हैं पूरे मिला के, प्राइमरी से लेके ऊपर तक 500 के ऊपर। तो वो बच्चे मतलब अरे भी नहीं बोलते हैं। तो जब हमने अब्यूज वर्ड नहीं इस्तेमाल करने के लिए बोला, स्वच्छ भाषा, तो पूरे स्कूल में, सब क्लासेस में, सभी बच्चों ने आपके सिवा वो बात नहीं करते। और देखते देखते इस बात को 4-5 महीने होते आ रहे हैं। हमने मई एंड से शुरू किया था, और स्कूल में अब बताइए, बस्ती के बच्चे हैं, बस्ती के बच्चे, उनकी जबान पे रहता है, वो जो देखते हैं, जो सीखते हैं घर में वही बोलते हैं, लेकिन स्कूल के गेट के अंदर आने के बाद वो बच्चे का एकदम लैंग्वेज बदल जाता है। बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ हमारे स्कूलों को।
थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी मुझे नाइस। बहुत ही खुशी हो रही है मैम ये बात सुन के, और मैं आपको सुनाऊंगी किसी दिन जरूर। क्योंकि हम लोग ने जहां जहां शुरू किया, देखिए कभी कभी मुझे लगता है यही बात है, बीज बोने की बात है। दैट्स व्हाट अरुणिम बस अंकुरण इज अबाउट। हम जो बीज बोते हैं वो कभी ना कभी फलेगा। और स्पेशली यंग बच्चों के लिए ना, कभी कभी एक हाँ, छोटी सी चीज आप उनको बोलिए तो वो बात हो जाती है कि हमको ये किसी ने पहले बोला नहीं। बोला नहीं है। Let me share my experience. I was at National Fire Service College recently. वहाँ कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन है। तो यही बात हो रही थी। मुझे बहुत बुरा लगता है देख के कि इतनी सुंदर भाषाओं के देश में गालियां एकदम कॉमन लैंग्वेज होती जा रही हैं। तो मैंने उन और यंग महिलाओं बच्चों के को भी, प्रति कुछ ज्यादा हाँ, होती है मैम। तो वो एक कंपटीशन भी जीता मैंने इस सिलसिले में। लाल एक स्लोगन लिखना था, मैंने भी लिखा। मैंने बोला, आपने पूछा कि मैं बोली जिस दिन आप लोग देवी की पूजा करते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, सही में महिला दिवस या मातृ दिवस तब मनाएंगे हम जिस दिन एक भी पुरुष, एक भी महिला के बारे में कुछ ऐसा नहीं करेगा, उसको सम्मान की दृष्टि देगा, बिल्कुल और तब हमारा भारत विजयी विश्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और ये जस्ट ये थॉट है, इसका बीज बोना ही बहुत है कि आप फाउल लैंग्वेज यूज मत करिए। मुझे बहुत मजा आया, मैंने उनको बोला कि अच्छा आंख बंद कर लो, और सब लोग जो फाउल लैंग्वेज यूज करते हो अपना हाथ ऊपर करो, सो दैट इफ योर आईज आर क्लोज यू डोंट नो कि यू नो। अमेजिंग ऑनेस्टी। बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किए, एंड देन लेटर ऑन आई सेड कि ठीक है, आप में से कितने लोग मीठी वाणी वॉरियर्स बनने के लिए तैयार है। इट वॉज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी। बहुत सारे बच्चों ने उस दिन मेरे साथ जुड़े, मतलब इस बात पे। और ये शायद एक शिक्षक के लिए वैल्यू एजुकेशन देना भी शायद हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आजकल के समाज में इतने सारे दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं कि जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। प्रीति, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? Yes, that is again a very big challenge which we face. कि बहुत मुश्किल है उनको बोलना कि आप मीठी वाणी बोलिए करके। तो हम उनको ऐसे सजेस्ट करते हैं कि एक अच्छा दिन, जैसे जिस दिन आपका बर्थडे है, आप उस दिन से शुरुआत कीजिए कि आज से मैं किसी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और आप फिर उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप कब तक कर सकते हैं। और जैसे मैम ने कहा, दीप्ति मैम ने, कि हम भी उनको वही बोलते कि कम से कम जब आप कॉलेज प्रीमाइसेस में रहते हैं तब तक आप कोशिश कीजिए, ताकि आपका आधे से ज्यादा वक्त अच्छी मीठी वाणी के साथ गुजर जाता है, और फिर आप उसको ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक करने की कोशिश कीजिए। तो इसके कुछ कुछ रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखे मैम। और जो बच्चे बिल्कुल ही बहुत ही गरीब परिस्थिति से आए थे, वो भी अच्छे एजुकेशन लेके बहुत आगे बढ़े, और बहुत यानी आउट ऑफ इंडिया जाके भी जॉब करते हैं। और फिर वो जब आके बताते हैं तो फिर एक बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत ही छोटी सी चीज, एकदम बीज बोया जाता है, बट जब उसके रिजल्ट्स दिखते हैं, रिपरकशंस दिखते हैं, तो बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ सोना, प्लीज। जिस तरह से बताया अभी प्रीति मैम ने और दीप्ति मैम ने और दिया आपने भी कि हम बीज बोते हैं, इतना सा इंसिडेंस अभी 15 अगस्त को जब मैंने देखा कैंपस में कुछ नहीं हो रहा है बच्चों के लिए, तो मुझसे रहा नहीं जाता है, मैंने उनके लिए ड्राइंग कंपटीशन रख दिया। बहुत सारे बच्चे आए, उन्होंने अपने मर्जी से 3-4 टॉपिक दिए थे अलग एज ग्रुप को, उन्होंने ड्राइंग किया। वो बात मेरे साथ 2-3 वॉलंटियर्स मैंने करे थे, क्योंकि बच्चे बहुत थे, हैंडल करने थे। गार्डन में सब बैठे कर रहे थे, बहुत सुंदर नजारा था। मैं बार बार कह रही हूँ, पेरेंट्स प्लीज आप इस साइड आइए, पेरेंट्स आप प्लीज इस साइड आके बैठिए। सारे बच्चे तो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। छोटी सी बच्ची है 1st स्टैंडर्ड की, उसके डैडी उसको लेने जल्दी आ गए, उसके पीछे जाके खड़े हो गए, वो जमीन पे बैठी ड्राइंग बना रही थी। उसने देखा ऐसे पीछे, कहती पापा आपको उधर बैठना है, यहाँ नहीं रहना है। सो इतनी सी चीज थी, वो इतनी देर से ये ऑब्जर्व कर रही थी कि ये मैम बार बार बोल रहे हैं पेरेंट्स उधर जाइए, पेरेंट्स जाने को तैयार नहीं है, तो मेरे यहाँ से गड़बड़ नहीं हो। सो आते ही अपने पापा को उन्होंने, इंस्टीड की मैं इंस्ट्रक्शन दूं, उन्होंने खुद दिया। तो जैसा आप सभी ने बताया कि छोटा सा बीज बोने की बात है, और मेरा जो कहना था कि आगे मैदान खाली पड़ा है, हम चाहे जितनी लंबी रेस अपने बच्चों के साथ लगा सकते हैं। Ma'am, I want to add in this.
So I think, again, what the series or, whichever is being very popular today, Hotstar, Netflix, which just children use, I think many times using this foul language, the children have developed from this series. Okay, and, this adolescents, like 6th onwards, 7 onwards, they use a lot. And the younger ones, they don't know the meaning, but they see their seniors and then like, okay, it's a trend we should follow. So what I do in my counseling cases is when some children, or anytime in class also, if a child complains, ma'am, this child is using a lot of foul language about me or on my family. So I make them sit and I ask them, when you use foul language, whose image do you think it's becoming bad? The one who is using or on whom we are telling? Then they realize it's us. I told it's very easy to create a negative image, but to maintain a positive image is something which you all have to talk about. So then I explained why we should not use, and I told, how about instead of using foul language, how about you talk a good thing, two or three good things about each other. So initially they feel, it's challenging for them, but as they take time and they appreciate each other, and when I ask them, how do you feel? They feel, ma'am, it's so good. We feel so better. I like, exactly, how about instead of using foul language, how about we change and start telling good things about each other? And some children, I really see the changes that they've started there, and they also use that as an example for others. Instead of foul language, let's talk good about each other. So that is something which I do, and I thought I'll share with all of you. Thank you, Ankita. तो हम मुझे लोग 2 मिनट बोलना है मैम, थोड़ा सा यदि समय दें आप तो। बिल्कुल बिल्कुल। हम बच्चों की बात कर रहे हैं एनईपी में, तो मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, जो आमतौर पे सिटीजन्स को, सामान्य जनता को पता नहीं होता है, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। इस जूम मीटिंग के माध्यम से ये मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, मैथमेटिक ओलंपियाड्स है, साइंस ओलंपियाड है, एनएमएस है, दुर्बल घटक है, अभी एक इंस्पायर मानक है पिछले 10 सालों से जो आया है। हमारी ये गलत सोच है कि बड़े-बड़े पढ़ने वाले साइंटिस्ट लोग ही कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं। ये हमारी धारणा एनईपी में बिल्कुल अभी सबने गलत ठहरा दी है। गवर्नमेंट इतना अच्छा सोचती है, उनको ये पता है, सारे सभी लोगों को पता है कि जो छोटा बच्चा है, वो 5वीं से लेकर के जो 12वीं तक का बच्चा है, वो भी इनोवेशंस कर सकते हैं। तो उनके लिए योजनाएं हैं, उनके एक-एक आइडियाज पे 10,000 गवर्नमेंट देती है। टीचर्स को चाहिए, मेंटर्स को चाहिए, ट्यूशंस जो हम लेते हैं प्राइवेट हम जैसे टीचर्स को चाहिए। हमने उनके पोटेंशियल्स को देखना है, स्टूडेंट्स के, विद्यार्थी के पोटेंशियल्स को, स्टूडेंट के पोटेंशियल को पता करना है कि वो किस चीज में इंटरेस्ट रखता है। उसके छोटा सा एक आइडिया क्लिक कर जाता है। एक बच्चे ने पेंडेमिक में सोचा कि हाथ से यदि हम सैनिटाइजर कर रहे हैं, वो भी तो गंदा हो रहा है, तो उसने बोला इसको पैडल का बना दिया जाए, तो उसका स्टेट नेशनल लेवल पे पहुंचा। किसी ने अपने दादी माँ को देखा कि वो सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही है वॉकर से, उसने उसको एडजस्ट लगा के, स्क्रू लगा के ब्रेक लगा दिया। तो बच्चों के किसी ने ये बोला कि मेरे फादर तो एक्सपायरी डेट पढ़ नहीं पाते हैं, तो 6वीं क्लास के बच्चे ने ये आइडिया भेजा गवर्नमेंट को कि ऐसा हो कि एक्सपायरी डेट के बाद उसकी कलर बदल जाए तो मेरे पापा पहचान जाएंगे, दादी पहचान जाएगी। उसका ये आइडिया आगे तक पेटेंट बना। ऐसे हर साल महाराष्ट्र से तक पूरे इंडिया से 10 लाख आइडियाज लेते हैं गवर्नमेंट, और उनमें से 1 लाख को वो 10,000 देते हैं, और उनमें से वो नेशनल लेवल जाते हैं। फिर 10% ऐसे रेज हो जाता है, लास्ट में जो 60 आइडियाज होते हैं गवर्नमेंट उनको जापान टूर कराती है। तो ये हम सबको पता नहीं होता है। सारे स्कूलों में सारे टीचर्स को बच्चों के पोटेंशियल को पहचान के उनकी आइडियाज को सामने लेके आइए। आप एक स्कूलों में हर जगह आइडिया बॉक्स रखिए, और आइडिया बॉक्स रखिए और उसमें बच्चों को बोलिए कि आप क्या नया चाहते हैं। तो आप देखो बच्चा कैसा घूमता है, जरूरत ही नहीं पड़ती उसको समझाने की, सारे बच्चे इनोवेशंस में लग जाते हैं। तो हम यही करते हैं, उनके मन की, उनका पोटेंशियल डेवलप कीजिए बस। आप फिर देखिए उनकी एनर्जी पॉजिटिव लाइन में कैसे जाती है। कुछ भी हमको दूसरा नया करने की जरूरत नहीं है मैम। मैम आपने जो बोला है, मुझे स्वामी विवेकानंद वर्ड्स आर रिंगिंग ट्रू। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। करेक्ट, वो सब हमारे अंदर ही है, इट जस्ट हैज टू कम आउट, लाइक दैट। अच्छा, एक और चीज है बिफोर वी कंक्लूड। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है सोचते होंगे टीचर्स बने, तो आप लोग जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? We'll start with Sona, then we'll come to Preeti, Deepti ma'am, and we'll come to Ankita. Yes. Short and sweet. एक दिन
प्रज्ञा दी, आपकी फेवरेट ने मुझसे पूछा, मेरी डॉटर ने, कि माँ अगर टीचर बन जाए तो। मैंने कहा नहीं। ऐसा उस वक्त छोटी थी तभी बोला मैंने, बोले आप भी तो टीचर हो, मुझे अच्छा लगता है आपको देखना। एंड या स्टिल वो मेरे क्लासेस में हेल्प करती है, संस्कृत की टीचर है वो खुद। अभी वो 10th में है लेकिन बहुत अच्छा संस्कृत क्लासेस में पढ़ाती हैं। और स्ट्रगल बहुत है, पेशेंस बहुत चाहिए, और बहुत ज्यादा प्यार मन में चाहिए। अगर ये है तो यस, टीचर बनना बहुत अच्छा है। थैंक यू सोना। प्रीति। Yes, ma'am, definitely. As we all know, there are two aspects of a human being's life, that is growth and survival. And for both these aspects, I think teacher is the best profession which helps you to grow as well as helps you to survive in this world, in this century, and for coming years together. So definitely मैं यही सजेशन दूंगी कि जिस किसी को भी टीचर के प्रोफेशन में आना है, जरूर आइए। इट इज अ ब्लिसफुल वन। वंडरफुल। तुम्हारा चेहरा देख के ही लग रहा है कि इट्स अ ब्लिसफुल वन। दीप्ति थैंक यू मैम। मैम। एग्जैक्टली, या जैसे कि जानते हैं कि शिक्षक शब्द का मतलब ही है श से, जैसे शिक्षित करना समाज को, श यानी बहुत ही क्षमाशील होना, आपको माफ करना ही पड़ेगा, और क से कर्तृत्व, अपना कर्तव्य निभाइए। तो जनरली टीचर्स जो है, हम बोलते हैं वो टीचिंग नहीं है, हम बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं, माइंड को ट्रेन करना टीचिंग है। तो आप आइए, वेलकम है। ये बहुत एक समाज सेवी और तप जप सारे एक तरफ है, और शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत पावन क्षेत्र है। और इसमें जो आंखों में जो बच्चों की, बड़ों के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप आंखों में सबके सम्मान देखते हैं। जरूर आइए मैम, सभी लोग को। अंकिता। Yes, ma'am. So everything has its own pros and cons, but I think overall being a teacher is really a blessing because we work with the future generation, and definitely before we work with them, before we provide them values, it's also very important that we take care of ourselves. And I think those positive stories like which Shona ma'am was sharing. One student called and told her like you don't have to worry, I become a doctor. As teachers or as counselor, when we focus on the positive stories, that actually also motivates us, where we can also I think spread much more value and more awareness among the students and create more wonderful stories. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों दिखाए। मुझे आप सबको देख के इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में है, आज की डेट में इन 2023 इतने सारे चैलेंजेस है, फिर भी सब लोग इतना पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं अबाउट बीइंग टीचर्स। सो ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यू आर बिल्डिंग द नेशन। Thank you so much. Thank you, ma'am. And happy Teachers